Hey guys, welcome back to my channel. So it is very important for all of us to know the meaning of subject we are studying, which leads us to question what is economics. So different economists have described this term economics in different way. So the definition which is on this slide is from your book, and it says that economy is a system which provides people the means to work and earn a living. मीन्स जो भी इंसान काम कर रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, कोई शॉप खोल के या किसी कंपनी के अंडर वर्क करके, डजेंट मैटर कि वह एम्प्लॉय है या वर्कर है, उन सबको हम इकोनॉमी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल शॉप्स, योर ऑफिसेज और रेलवेज कलेक्टिवली दे कॉल्ड एन इकोनॉमी. But there is one more definition of economics, and which is more accurate, because whenever we talk about economics, scarcity comes in the picture. So the definition is that economy is a study of how choices are made subject to the constraint of scarcity of resources. Scarcity means the limitation, and resources are the goods and services required to carry out production. And this scarcity of resources means the limitation of resources is the reason why we study economics. So now the question is, what is scarcity? The very simple meaning of scarcity is where demand is greater than supply. अब जो बैकग्राउंड में पिक्चर है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है. तो यहाँ पर क्या है कि जो पानी है वो बहुत कम है, मतलब उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है, लेकिन जिन लोगों को चाहिए, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. बट स्कैरसिटी इज़ यूनिवर्सल. जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है ना वो यूनिवर्सल होती है. मीन्स every person, every firm, every business, every organization faces the problem of scarcity of resources, and therefore we have to make choices. तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो, अभी समझने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो, आप खुद सोच के देखो. और हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर के पास लिमिटेड बजट है और अगर उसको एक चीज़ ज़्यादा खरीदनी है तो उसको दूसरी चीज़ कम खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर भी यही सेम कंसेप्ट हमारा अप्लाई होता है. But the scarcity of resources is not the only problem. Resources have alternative uses as well. तो हमको पता है that water is limited and can be used for multiple purposes. So now it depends on economy that it is putting resource on which use, कि वो किस use में उस resources को ला रहे हैं. Whenever we use commodity for one use, the other use of commodity will be rejected. ठीक है. Now economic problem. So basically economic problem is problem of choice. ठीक है, as I told you, scarcity of resources is universal and therefore we have to make choices. Resources, with limited resources having alternative uses, we have to satisfy unlimited human wants. So there are three reasons basically. Scarcity of resources. So production of any goods and services requires resources, that is land, labor, capital and entrepreneur. But as we all know that these resources are limited, even if we use all available resources, the small part of human wants can be satisfied, and therefore we have to make choices. The next one is unlimited human wants. So as we all know that human wants are unlimited, and as soon as one want is satisfied, the other want will emerge. And also for every individual, some wants are more important and urgent as compared to others. तो अगर आप देखो, आपके लिए कुछ चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी एंड दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ कम इम्पॉर्टेंट होगी. बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर एक सोशल साइंस होता है, तो एक्यूरेट आप सबका नहीं बता सकते हो कि सबको क्या चीज़ें पसंद आएंगी. ठीक है. And resources have alternative uses as well. Means resources are not only limited but they have multiple uses, which means that resources can be put to various uses. For example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines and generators. So अभी इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि उसको पेट्रोल व्हीकल्स के लिए देना है या फिर मशीन्स के लिए देना है, जनरेटर्स के लिए देना है, या जो कंपनी में जो भी वर्क होता है उसके थ्रू उसके लिए देना है. बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूसेस भी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या होता है, हमको इकोनोमाइज करना है, मतलब हमको ऑप्टिमम यूज, बेस्ट यूज करना है. हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हमको इस तरीके से यूज करना है कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले. ठीक है. नाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स.
इकोनॉमी। तो जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी वो बेसिकली ये थी कि इकोनॉमी प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है, वो है क्या, दैट इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। मीन्स एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द चॉइस प्रॉब्लम, ठीक है, चॉइस हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। नाउ दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो जो चॉइस करना है वो हमारी होती है फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब आपको कोई रिसोर्स कहाँ पर यूज करनी है, दैट इज योर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको उस जगह रिसोर्सेज को यूज करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उस वक्त और जिससे कि मैक्सिमम वांट्स पीपल की सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अगर हमको लगता है कि अभी हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, हमने जो वो पेट्रोल था हमने मशीन्स में दे दिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अभी हमको कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ानी है तो हमने वो पेट्रोल वहाँ दे दिया। इट डिपेंड्स, मतलब ऐसे हम रैंडमली नहीं डिपेंड करते, वो बहुत फैक्टर्स के ऊपर बेसिस होता है। बट जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया, आई टेक दिस एग्जाम्पल। The allocation of resources is fundamental problem of an economy, and this problem of allocation of resources is studied under three heads. So the first one is what to produce. So this problem involves what commodity, means what goods and services to be produced and in which quantity. ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, और अगर एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है तो फिर ये प्रॉब्लम है कि कितनी क्वांटिटी में डिसाइड करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। So this problem is faced because we all know that resources are limited on one hand and have alternative uses on the other. Whenever we use commodity for one good or whenever we use commodity for one purpose, the other use of commodity will decline. So this problem has two aspects. So the first one is what possible commodity to produce. अब it depends on economy कि उसको consumer good ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या फिर कैपिटल गुड या फिर क्या कॉम्बिनेशन उसको उसका प्रोड्यूस करना है। The next one is after deciding the goods to be produced, the economy has to decide the quantity of selected commodity, कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि allocate the resources in such a manner which gives maximum aggregate satisfaction, जिससे कि सेटिस्फैक्शन मतलब दोनों जगह आप ऐसे एलोकेट करो कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। द नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने देख लिया कि हमको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में भी हमने देख लिया। बट नाउ द प्रॉब्लम इज which technique to be used for production of goods and services, and there are two techniques. The first one is labor intensive technique, मतलब कि here we are going to use more labor and less capital, and ये वाली जो हमारी टेक्निक है इट हेल्प्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा लेबर हम यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब इन दिस वी आर गोइंग टू यूज मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि कंबाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर दैट सो दैट योर मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट। तो अगर कोई भी इंसान अपना बिजनेस करता है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी कम से कम तो उसके पैसे लगे, मतलब कम से कम रुपए खर्च हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो। तो इकोनॉमी भी यही चाहती है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट उसको मिले। तो हमको हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, हम उसको ऐसे कंबाइन करें कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले विद इन मिनिमम कॉस्ट। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज whom टू प्रोड्यूस। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने को क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है और कैसे करना है, लेकिन अब बात आती है किसके लिए करना है। सो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड। तो अगर आपने देखा हो, जो भी मार्केटिंग में भी देखो, जो भी ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, जैसे कि किंडर जॉय, तो उसकी एक टारगेट ऑडियंस है जो कि छोटे बच्चे। जो भी टॉय वाली कंपनीज होती हैं उनकी एक टारगेट ऑडियंस होती है छोटे बच्चे, ठीक है। सो कपड़ों के जो ब्रांड्स होते हैं उनकी एक अपनी अपनी ऑडियंस होती है, या फिर उनकी उसमें भी सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो हर किसी की एक टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट कस्टमर होते हैं। ऑडियंस अगर आप सीरियल्स की बात करें या डेली जो सोप ओपराज होते हैं अगर आप उनकी बात करें तो उनका एक अपना होता है कि
ये हम यूथ ओरिएंटेड है, या फिर ये हमारे बच्चों के लिए है, या फिर ये लेडीज़ के लिए है, या फिर ये पर्टिकुलरली शो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर है, तो वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट, किस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। तो हर एक चीज़ की अपनी एक कंज्यूमर, अपना एक टारगेट कंज्यूमर और अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वी आर एश्योरिंग दैट कि हमको गुड प्रोड्यूस किसके लिए करने हैं, हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, क्योंकि मैं जो भी गुड्स प्रोड्यूस करूँगी उसका कोई ना कोई उसको कंज्यूम तो ज़रूर करेगा। तो अब मैं वो प्रोड्यूस ही किसके लिए कर रही हूँ, दिस इज द मेन क्वेश्चन हियर। तो वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर पुअर और फॉर रिच पर्सन, और फिर मोर पुअर एंड लेस रिच, और मोर रिच एंड लेस पुअर। सो सी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। मीन्स दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हु वुड गेट मोर एंड हु वुड गेट लेस, ठीक है। This has two aspects. The first is personal distribution of income, जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बेसिस पर हम इसको डिसाइड करते हैं। So it means how national income of an economy is distributed among different groups of people. The next one is functional distribution of income, which means that deciding the share of different factors of production. Factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur इन द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें हम इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को नहीं देख रहे, बट कंबाइन हमने कर दिया है उसको, लैंड मतलब कैटेगरी बना दी लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। तो जो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है दैट द अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव सेक्टर, ईच प्रोडक्टिव फैक्टर सॉरी, आर टू बी फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मतलब आपको क्या करना है, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है। इट डजेंट मैटर कि आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, पुअर के लिए, बट आप जो कर रहे हो उनकी अर्जेंट वांट्स, मतलब उस सेक्टर, उस कंज्यूमर के लिए करो जिसकी उस वक्त पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट वांट है। अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच productive factor are to be fulfilled to the maximum possible extent. So you can refer these slides, they are just explaining what I have explained. So that's it for today. Thank you.